Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are discussing our chapter natural resources, and in previous video we discussed different abiotic component of biosphere like air, water and soil. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. Today we are going to discuss about the biogeochemical cycle. So let's start our this chapter. Biogeochemical cycles, what does it means? These cycles, they refer to the transfer of matter and energy between the biotic and abiotic components of the biosphere. Biosphere के दो components हैं जो हमने पढ़े थे, biotic और abiotic. दोनों component के बीच में different types के matters और energy का जो transfer होता है उसे हम बोलते हैं biogeochemical cycle. तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे लाइक वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साइकिल विच इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर और कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिटवीन द sky and the ground, and then this is the continuous movement of water from the sky to the ground and then it's coming back again onto the ground. The water cycle can be divided into different stages like evaporation, condensation, and the third one is precipitation, which is rainfall or snowfall. So evaporation, this is the phase where the water from the earth evaporate into the water vapors and travels back to the atmosphere. Water का vapors की form में evaporate होके earth से एटमॉस्फेयर के अंदर आना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इवेपोरेशन. सिमिलरली कंडेंसेशन जो है, दिस इज अनदर प्रोसेस वेयर द वाटर कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स द क्लाउड्स. जब वाटर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ जाने के बाद जब ऊंचाई पे पहुंच जाता है वहाँ टेम्परेचर लो होता है. एट दिस लो टेम्परेचर दिस वाटर वेपर्स दे कूल्स डाउन and they forms the clouds in the atmosphere. Sometime when the water temperature goes very down, यानी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तब का यही कंडेंस हुई वाटर ड्रॉपलेट्स रेन, स्नो या फिर हिल्स की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज प्रेसिपिटेशन. इसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं. सो द वाटर दैट फॉल्स ऑन टू द अर्थ, जब पानी अर्थ पे आ रहा है, इट्स ट्रेवल्स थ्रू द डिफरेंट पाथवे बिफोर इट फाइनली फॉल्स बैक इनटू द सी. हमने कहा कि वाटर का कंटिन्यूस साइकिल है बिटवीन द वाटर साइकिल फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड. तो यहाँ पे जब स्काई से वाटर आ गया है तो वापस स्काई में जाएगा, उससे पहले वो कई पाथ फॉलो करेगा, लाइक इट विल गो इनटू द सी, इनटू द ओशंस एंड रिवर्स. फ्रॉम देयर दिस वाटर गोज इनटू द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, and from there it goes again into the water cycle. So this is water cycle. So let's see with the diagram how we can explain the water cycle. So this is a very well known diagram of water cycle. ये आपने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है. This is the first phase जहाँ पे हम कह रहे हैं कि evaporation हो रहा है. Evaporation is the conversion of water into the vapors. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि water bodies है, like oceans है, rivers है, सब जगह से water जो है वो evaporate होके sky के अंदर जा रहा है. When this water vapor they goes up into the sky, they become condensed by the cooling. So यहाँ पे जो second phase है वो है condensation, and due to the condensation they will form the clouds. So cloud formation will happen there. Clouds form हो गए हैं. जब clouds formation में बहुत सारी water droplets एक साथ आती हैं, then they will go onto the earth in the form of rain, that is known as precipitation. But जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है जैसे माउंटेन्स वगैरह पे, तो यही जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये स्नो की फॉर्म में अर्थ पे वापस आ जाती हैं. So this is precipitation. When this water comes onto the earth in the form of rain, hail or snow, then it goes into the river or deep underground. तो ये अंडरग्राउंड भी जा सकता है, अर्थ की सरफेस पे भी प्रेजेंट रह सकता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर, और सम वाटर गोज अंडरग्राउंड एंड मेक द ग्राउंड वाटर. फ्रॉम हेयर इट विल गोज बैक ऑन टू द एटमॉस्फेयर बाय द इवेपोरेशन. So this cycle is known as water cycle. Now let's study about the very important biogeochemical cycle, that is nitrogen cycle.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। लेट्स सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, उसे ही हम नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अप टू 78%। इतने हाई अमाउंट में नाइट्रोजन एयर के अंदर प्रेजेंट है एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेक द प्रोटीन्स। आपको पता है हमारी सेल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंड जो प्रोटीन्स बने हैं वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, एंड दीज प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स दे फॉर्म्ड द इंपॉर्टेंट component like DNA and RNA also. So overall we can say that to make the proteins, amino acid, DNA and RNA, nitrogen is required, and this nitrogen is also common element found into the alkaloids and urea. Alkaloids और यूरिया के अंदर मिलने वाला भी एक important component है नाइट्रोजन। This nitrogen is present into the air in high abundance. हमने अभी देखा 78% नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है, बट फिर भी ये नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते एज एन ह्यूमन बींग, एंड प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन। सो ये जो नाइट्रोजन है ये डिफरेंट फेजेस के थ्रू सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हम देखते हैं। First is the nitrogen fixation. First phase of the nitrogen cycle is nitrogen fixation. Nitrogen fixation is the process in which the nitrogen which is present into the atmosphere can be converted into the some another organic form by which the plants can absorb this. जैसा मैंने अभी कहा नाइट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, और इतने हाई अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से ये नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली अब्जॉर्व नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट किया जाए ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे यूज़ कर सके। And this conversion of nitrogen into organic form is known as nitrogen fixation. इसे ही हम nitrogen fixation कहते हैं। There are the two types of nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation. This is the first type. पहले हम देखते हैं यही first type biological nitrogen fixation. Then second will be the natural nitrogen fixation. This biological nitrogen fixation की अगर हम बात करें, this is the nitrogen fixation process that take place with the help of bacteria. यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, एंड दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इनटू द सॉइल and the roots of the plants, or the sometimes they are also live in association with plants. तो ये स्पेशली यहाँ पे हम ऐसे बैक्टीरियाज को इंक्लूड करेंगे जो कुछ प्लांट्स की रूट्स में मिलते हैं। आपने देखा है कि प्लांट्स हैं जैसे पी प्लांट या जो इस फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जिसमें सारे पल्सेस ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर इस तरीके की कुछ नोड्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं, और इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, एंड दीज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दे हेल्प द नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही बैक्टीरियाज एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं जो फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में अवेलेबल है, और उस नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के अंदर ताकि इसे प्लांट्स अब्जॉर्व कर सकें। So this is the process of biological nitrogen fixation. The important bacteria which is playing very important role in this process is the rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria is the bacteria which is helping in the nitrogen fixation. So this is the one way by which we can say that nitrogen fixation can be done. The another way of nitrogen fixation is the natural nitrogen fixation. Natural nitrogen fixation एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नेचर के एनवायरनमेंट के थ्रू ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, एंड द प्रोसेस हेयर इज दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होती है, जब बिजली चमकती है बहुत तेजी से, उस टाइम पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है, एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर और प्रेशर जो एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दिस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड इट फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं। दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हेन दे डिजॉल्व इन द वाटर, जब ये रेन के वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, देन दे फॉर्म द नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। ये नाइट्रिक एसिड रेन के साथ अर्थ पे पहुंच जाता है ड्यूरिंग द रेनफॉल। So in this way the nitrogen from the atmosphere is coming onto the earth. Next
important method could be the industrial nitrogen fixation. तो ये भी एक और तरीके का मेथड है. दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं लाइक अमोनिया एंड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स. These products can be formed into the different factories, and this is the industrial nitrogen fixation. The second step of the nitrogen fixation is the assimilation. So एक बार जब नाइट्रोजन प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्व हो गई नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, देन द प्लांट्स यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन. प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द नाइट्रोजन इज नॉन एज assimilation, and after utilizing this nitrogen the plants form amino acids, and these amino acids are used to make the proteins प्रोडक्शन में काम आता है, and this process is known as assimilation. assimilation मतलब यूटिलाइज करना. सो आफ्टर अब्जॉर्प्शन ये जो नाइट्रोजन है ये यूटिलाइज की जाती है और ये प्लांट की बॉडी का पार्ट बन जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन में हम किस प्रोसेस को इंक्लूड कर रहे हैं कि एसिमिलेशन में प्लांट्स ने नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लिया, तो नाइट्रोजन चला गया प्लांट्स की बॉडी के अंदर और प्लांट्स को खाया है एनिमल्स ने, तो वहां से नाइट्रोजन एनिमल्स की बॉडी का भी पार्ट हो गया. व्हेन दीज प्लांट्स और एनिमल्स दे गेट डाई, जब ये प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाएंगे or they will excrete their waste, then nitrogen present in the organic matter enters into the soil. वहां से ये नाइट्रोजन सॉइल के अंदर एंटर करेगी. यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डिकम्पोजर जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर. So we can say that ammonification is the process in which the complex organic compounds like proteins, they are converted into the ammonia. So this process is known as ammonification. So due to ammonification the ammonia is formed. Now let's see what is happening next. Next process is nitrification. नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर जो अमोनिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट हुई है, जो सॉइल के अंदर अमोनिया पहुंचाई गई है, दिस अमोनिया इज नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स. पहले ये कन्वर्ट की जाएगी नाइट्राइट के अंदर बाय द नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया. These nitrosomonas bacteria will convert this ammonia into the nitrites, and then these nitrites are converted into the nitrates by the nitrobacter bacteria. So these two bacteria, they will convert the ammonia into the nitrite and nitrate. These nitrates so formed in the soil can be absorbed by the plant. अब plant जो है इन nitrates को आसानी से absorb कर सकते हैं, so plants इन्हें absorb कर लेंगे. This process is known as nitrification. इस process का नाम है nitrification. Next process is denitrification. Now denitrification is just opposite of the nitrification. जो हमने nitrification में देखा था उसका opposite यहाँ पे हो रहा है. Here the special type of bacteria called denitrifying bacteria. Example है इस तरीके के बैक्टीरिया का Pseudomonas. ये बैक्टीरिया denitrifying bacteria, they convert the nitrate oxides present into the soil into the oxygen and nitrogen. तो जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रेट की फॉर्म में, उस नाइट्रेट्स को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इनटू द फोटोसिंथेसिस एंड दिस नाइट्रोजन गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. सो हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर आई थी थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. But due to the denitrification process, this nitrogen goes back into the atmosphere, or it can be released into the atmosphere. This process is known as denitrification. And the example of the bacteria which is doing denitrification is Pseudomonas. So these are the important steps of the nitrogen cycle. Now let's try to understand this nitrogen cycle with the help of this diagram. यहाँ पे पूरा साइक्लिक इवेंट आपको दिखाया गया है कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल काम कर रहा है, कैसे हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ हम कह सकते हैं नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर. यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, दिस इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया एंड द नाइट्रोजन विल कम इनटू द प्लांट्स के अंदर आ गई है. देन प्लांट्स को ईट किया एनिमल्स ने, नाइट्रोजन चली गई एनिमल्स के अंदर.
एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के डाई होने की वजह से या फिर वेस्ट एक्सक्रीट करने की वजह से अमोनिया फॉर्म होगा एंड दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इन द अमोनिफिकेशन की वजह से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा वो वेस्ट एंड आफ्टर दैट this ammonia is get converted into the nitrite and then nitrate और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू दी नाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस है हमारी नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ड्यू टू नाइट्रिफिकेशन दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट एंड देन these nitrate can be absorbed back by the plants or they can be converted by the denitrifying bacteria into the nitrogen and this nitrogen goes back into the atmosphere. So these all are the parts of the nitrogen cycle. ये एक और साइकिल आपको यहाँ दिखा रखा है जिसमें डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ एंड दिस नाइट्रेट्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर आए हैं ये नाइट्रेट प्लांट्स ने अब्जॉर्व कर लिए और दिस नाइट्रेट कैन बी डीनाइट्रीफाइड इनटू द फ्री नाइट्रोजन बाय द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया. So this is the nitrogen cycle and the important steps of these nitrogen cycles एक बार हम फिर से देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कौन कौन से स्टेप्स थे इंपॉर्टेंट. फर्स्ट स्टेप है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, second step is assimilation, third ammonification, fourth nitrification and then last one is the denitrification. Through the denitrification the nitrogen is released back into the atmosphere. So this is about the nitrogen cycle. Next we will discuss about the carbon cycle. कार्बन साइकिल ये एक ऐसा साइकिल है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन बायो कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम टू अनदर. बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कार्बन का ट्रांसफर. कार्बन जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो डिफरेंट फॉर्म में है, लाइक इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इन मिनरल्स. मिनरल्स जो अर्थ के अंदर मिलते हैं वहाँ पे भी कार्बन बहुत रिच अमाउंट में कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में अवेलेबल है. कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म्स इन द प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. हमारे इन सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है. The internal skeleton or external skeleton in animals is also made up of carbon salts. तो हमारा skeleton बनाने का काम भी कार्बन कर रहा है. Plants convert carbon into the glucose molecules during the photosynthesis. So photosynthesis के थ्रू कार्बन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स के थ्रू. So this is the carbon that how it can be released back into the atmosphere. Carbon can be released back into the atmosphere through two processes, respiration and combustion. रेस्पिरेशन, जैसे कि हमें पता है रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू गेन एनर्जी एंड देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन जा रहा है. एंड सेकेंड द कंबशन, burning of fuels for different requirement like cooking, industrialized processes, transportation and heating. These all burning processes they release the carbon dioxide into the atmosphere. जब भी हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. सो दीज आर द टू वेज बाय विच द कार्बन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. सो इन तरीक़ों से जब कार्बन एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है वहाँ से प्लांट्स इसे यूटिलाइज करेंगे इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड देन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ प्लांट्स. नाउ लेट्स सी द कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल जैसे कि हमने अभी देखा, दिस इज द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर. CO2 की फॉर्म में कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ से ये जो कार्बन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज हो रहा है. प्लांट्स इसे यूज़ कर रहे हैं इन देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. प्लांट्स के अंदर आ गया. प्लांट से ये जो कार्बन है इट्स गोइंग इनटू द एनिमल्स, एनिमल्स में जा रहा है. सो एनिमल की रेस्पिरेशन प्रोसेस और प्लांट्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू दीज कार्बन्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2 or carbon dioxide. And here decomposition is also included. When these plants or animals they get buried dead, after that decomposition होगा और इनके decomposition की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाएगी. सेकेंड वे वी कैन से जो कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है प्लांट्स की फॉर्म में, दिस कार्बन कैन बी
converted into the carbonates. When it dissolved into the water, these carbonates can be formed the limestone, or the carbon can be present in the form of coal. आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट्स की डेथ होने के बाद, जब बहुत सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, दीज डेड प्लांट पार्ट्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कोल. तो प्लांट से कोल के अंदर भी कार्बन ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर कोल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम ऑल्सो. सो दीज कोल एंड पेट्रोलियम दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट्स, एंड व्हेन we burn these products, combustion जब हम इनका करेंगे, इनकी जब burning करेंगे, then also the CO2 is released, and this is the form of the carbon by which it goes into the atmosphere. So ये हमने देखा. and this is another form, inorganic carbonate shells. बहुत सारे animals ऐसे हैं जिनके shells जो होते हैं वो भी कार्बन के ही बने होते हैं. तो ये जो inorganic carbonate shells हैं, ये shells भी कार्बन कंटेनिंग है. आफ्टर इनकी डेथ होगी या ये डिकम्पोज होंगे, देन ऑल्सो फ्रॉम देयर बॉडी ऑल्सो कार्बन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. वैसे ये जो शेल्स होते हैं, दे आर नॉट डिकम्पोजेबल, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बन, वी कैन से. So this is about the carbon cycle. Now let's see the another cycle, that is the oxygen cycle. It's very easy. We know oxygen is very important gas that is used for the respiration, combustion and the formation of oxides of elements. बहुत सारे oxides बनाने के भी काम में आती है. Oxygen is sent back into the atmosphere during the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी. ऑक्सीजन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. इन सब कंपोनेंट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर. फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर इट इज टेकन इनसाइड बाय द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है. जब रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट प्रोसेस से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं. ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन दिस फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, और जो ग्लूकोज बन रहा है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है, दिस ग्लूकोज इज फॉर्म. दिस ग्लूकोज इज अगेन गोज बैक इनटू द एनिमल बीइंग और ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म और टू प्रोवाइड देम एनर्जी. तो वहाँ पे ये एनर्जी देने का काम करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो इन दिस वे कंटिन्यूस साइकिल ऑफ ऑक्सीजन इज गोज ऑन. दिस इज नॉन एज ऑक्सीजन साइकिल. Now the next important concept जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, that is about some important processes that or some important phenomena. One important thing is here, that is greenhouse effect. अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम ये देखेंगे कि कुछ गैसेस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये जो गैसेस हैं ये अर्थ से, जो अर्थ के ऊपर जो सन से हीट रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें ट्रैप करने का काम करती हैं. सपोज ये सन है और सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ के ऊपर, इन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस तो अर्थ अब्जॉर्व कर लेती हैं और कुछ रेडिएशंस अर्थ से ट्रांसफर होकर टकरा के वापस चली जाती हैं. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस इनटू द हाई अमाउंट, जब ये गैसेस बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं तो ये हीट रेडिएशंस जो वापस जा रही हैं सन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उन्हें वापस नहीं जाने देती, उन्हें रोक लेती हैं. जब ये रेडिएशंस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रुक जाएंगी, वापस नहीं जा पाएंगी, उस कंडीशन में अर्थ का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज greenhouse effect. So we can say that increase in the presence of these gases, the temperature goes down. It means the temperature increase in the temperature due to the increase of these gases. कौन सी gases? Carbon dioxide, methane, etc. So these gases can increase the temperature onto the earth, and this process is known as greenhouse effect. This greenhouse effect can cause melting of polar ice. जो पोल्स पे आइस जमी हुई है वो आइस मेल्ट हो रही है इस प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से सी लेवल्स इंक्रीज होगा, एंड इट कॉजेज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन द कोस्टल एरिया, जिसकी वजह से फ्लड आ सकती है कोस्टल एरियाज के अंदर और उन्हें सबमर्जिंग ऑफ आइलैंड्स और आइलैंड्स को डुबो सकती है, सबमर्ज कर सकती है. सो दिस इज़ वेरी सीरियस कंसर्न. दीज ग्रीन हाउस गैसेज, कौन सी गैसेज है जिसे हम ग्रीन हाउस कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन. दीज गैसेज
are creating this effect and that's why they are known as greenhouse gases. एक और important concept है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो है ओजोन लेयर से रिलेटेड. ओजोन लेयर डिप्लीशन हमें यहाँ पे पढ़ना है. ओजोन क्या है? ओजोन इज अ गैस विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वन फ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन और विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन का एक फ्री एटम ज्वाइन हो जाता है तो एक ट्राई एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन. सो ये जो ओजोन है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कंटिन्यूसली बनती रहती है एंड आफ्टर द फॉर्मेशन इट्स क्रिएटिंग अ लेयर. ये एक लेयर बना रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. लाइक जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द एटमॉस्फेयर. ये हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर शो की हुई है. अर्थ के ऊपर ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर क्या पार्ट है जहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, लाइक फर्स्ट ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर. इसी स्ट्रेटोस्फियर रीजन के अंदर ओजोन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक लेयर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर. एंड दिस ओजोन लेयर इट डूज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दिस ओजोन लेयर इज यूजफुल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल हीट रेडिएशंस दैट कम्स फ्रॉम द सन. सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज. अल्ट्रावायलेट रेज मतलब यूवी रेज, ये बहुत हार्मफुल रेज होती हैं. जब ये सन से आ रही हैं इन्हें रोक के हमारे अर्थ पे हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं ये ओजोन लेयर. बट कुछ सालों से ऐसा देखने में आया है कि ओजोन लेयर है जो वो डिप्लीटेड होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है. एंड एक होल जैसी स्ट्रक्चर जो है ओजोन लेयर में देखी गई थी अंटार्कटिका के ऊपर. एंड दिस हियर यू कैन सी दिस इज़ द अंटार्कटिका रीजन जहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन शो हुआ था. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन. इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसमें ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है. अब इम्पोर्टेंट कॉज जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का वो है एक हार्मफुल पोल्यूटेंट जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC. In short, we can call it CFC. CFC is a pollutant which is destroying the ozone layer. ये जो CFC है ये यूज़ होता है बहुत सारी प्रोसेसेस के अंदर जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है या फिर हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, एरोसोल स्प्रेस के अंदर फॉर्म्स में और सॉल्वेंट्स की फॉर्म में. तो इन जगहों पे जब हम CFC को यूज़ करते हैं ये CFC एटमॉस्फेयर में जाके हमारी ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. ये इसमें से क्लोराइड और फ्लोरीन इनके मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं. ये मॉलिक्यूल्स ये बाइंड हो जाते हैं ओजोन के साथ, ओजोन को ब्रेक डाउन करेंगे और इस तरीके से ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन. ये डिप्लीशन होने की वजह से अर्थ के ऊपर हार्मफुल रेडिएशंस कंटिन्यूसली आती रहती हैं और जो बहुत सीवियर कंडीशंस क्रिएट कर सकती हैं. क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का? लाइक इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर. अब कंटिन्यूसली सन से रेडिएशंस आएंगी तो उन रेडिएशंस की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, आइज डैमेज हो सकती हैं, इट कैन कॉज द डैमेजिंग ऑफ आइज. द वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है, स्किन एलर्जीज प्रोड्यूस हो सकती हैं, प्लांट्स की ग्रोथ और एनिमल्स की ग्रोथ पे फर्क पड़ सकता है. एंड इट कैन ब्रेक डाउन द नेचुरल कार्बन साइकिल को भी ये हार्मफुल रेडिएशंस डिस्टर्ब कर सकती हैं. सो दिस इज़ द वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर. तो आज हमने यहाँ पे डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल और साथ में दो इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ा. आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट्स. थैंक यू.